wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. How are you all today? आप सबका अभिवादन हो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, आप सब कैसे हैं? I trust all of you are well and good by the wonderful grace of our living God. विश्वास करता हूं कि आप सब सही सलामत हैं हमारे जीवित परमेश्वर की अद्भुत कृपा के द्वारा। So we studied last week how we can come boldly before the throne of God. पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे कि कैसे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें निर्भीकता के साथ आना है। So in case you have forgotten or you are just new, let me replay a little bit of last week's message. अगर आप भूल गए हों या पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो यह रिकैप को देख लें जो आपके लिए है। Now the second part of the Ark of the Covenant is the mercy seat. अब वाचा के संदूक का दूसरा भाग है प्रायश्चित के ढकने या कृपा आसन। The mercy seat is always covered with blood. यह ढकने हर समय लहू से भरा होता है। Once a year, the high priest is required to come before the Ark of the Covenant to make atonement for the children of Israel. साल में एक बार महायाजक को वाचा के संदूक के सामने आना होता था संपूर्ण इजरायली जातियों के लिए पाप का प्रायश्चित करने के लिए। And he will bring the blood of a lamb that was slain as a sin offering to be sprinkled on the Ark of the Covenant. वो उस मेमने के लहू को लेकर आता था जिस मेमने को पाप बलि के रूप में चढ़ाया जाता था जिसे वाचा के संदूक में छिड़कना होता था। This he does once a year. इससे वो हर साल में एक बार करता था। So the Ark of the Covenant with the mercy seat is always covered with blood. इस तरह वाचा का संदूक प्रायश्चित के ढकने के साथ हर समय लहू से ढका होता था। So what does that spiritually signifies? इसका आत्मिक महत्व क्या है? It spiritually signifies the blood of Jesus Christ that was shed for us on the cross. यह आत्मिक रूप से इस मसीह के लहू को दिखाता है जो सलीब पर बहाए गए थे। And the Bible tells us in Hebrews chapter 12 verse 24 that the blood of Jesus Christ speaks for us on our behalf before the throne of God every day. बाइबल इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय के 24वें वचन में कहता है, इस मसीह का लहू यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमारे लिए सदा वाद करता है। So what does that signify? यह किस बात की ओर संकेत करता है? The priestly ministry of intercession of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का याजकीय मध्यस्थ करने वाला सेवकाई को दर्शाता है। In Hebrews chapter 7 verse 25 it says the Lord Jesus Christ ever lives to intercede for us. इब्रानी 7 अध्याय का 25वां वचन कहता है कि वे उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। So now in the Ark of the Covenant we see these two works. अब हम वाचा के संदूक में ये दोनों बातों को देखते हैं। The kingly work and the priestly work. राजस्य या राजा का कार्य एवं याजक का कार्य। Now if we put all this together, what does the Ark of the Covenant including the mercy seat spiritually represents? अगर हम ये सारी बातों को इकट्ठा कर देखते हैं तो वाचा का संदूक कृपा आसन के साथ आत्मिक दृष्टिकोण से क्या दर्शाता है? It represents the throne of God on which the Lord Jesus Christ sits as a king and as a priest. यह परमेश्वर के सिंहासन को दर्शाता है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक राजा और याजक के समान बैठते हैं। This is so beautifully written in Zechariah chapter 6 verse 13. जकराया 6 अध्याय के 13वें आयत में यह बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है। So that is why the Bible says इसलिए बाइबल बताता है we can come boldly before the throne of grace. हम निर्भीक होकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ सकते हैं। When you come boldly like a king before the throne of God, which is before the ark to intercede, you will be shown from heaven's perspective, from God's viewpoint concerning a situation. जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्भीक होकर आते हैं जो संदूक के सामने है मध्यस्थ करने के लिए, आपको दिखाई जाएगी स्वर्ग के दृष्टिकोण के द्वारा परमेश्वर के हिसाब से किसी एक परिस्थिति को लेकर
Now let me give you one example. आइए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। In 1 Kings chapter 22 verses 1 to 28, we read of an incident. पहला राजा 22 अध्याय के पहले 28वें आयत तक हम एक घटना को पढ़ने पाते हैं। The king of Syria had planned to attack the nation of Israel. सीरिया के राजा ने इज़राइल देश के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। You know, in those olden days, Israel was divided into two halves. पुराने दिनों में इज़राइल दो भागों में बटा हुआ था। The northern kingdom is called Israel and the southern kingdom is called Judah. उत्तरी राज्य को इज़राइल और दक्षिणी राज्य को यहूदा कहा जाता था। So the king of Syria planned to attack the northern kingdom Israel. सीरिया के राजा ने उत्तरी राज्य इज़राइल को आक्रमण करने की योजना करी। So the northern kingdom Israel's king Ahab called the southern kingdom of Judah's king Jehoshaphat to help him defend themselves against the attack from the king of Syria. उत्तरी इज़राइल के राजा आहब ने दक्षिणी यहूदा के राजा यहोशापात को बुलाकर अपने राज्य को सीरिया के विरुद्ध लड़ने में सहायता करने का आग्रह किया। So the king of Judah agreed and he came to the northern kingdom. यहूदा के राजा ने इस निवेदन को स्वीकार कर ली और उत्तरी राज्य पर वे आ गए। So while these two kings were discussing about the war situation, जैसे ये दोनों राजा युद्ध की स्थिति पर बात कर रहे थे, the king of Judah Jehoshaphat asked King Ahab if there are prophets in the land whom we can ask them to pray and seek the mind and the will of God concerning the situation. यहूदा का राजा यहोशापात ने इज़राइल का राजा आहाब से पूछा कि देश में कोई नबी है जिससे वे इस परिस्थिति के बारे में परमेश्वर की इच्छा के बारे में जान सकते हैं। So the king Ahab said, yes, of course, I have 400 prophets who can come and tell you the word of God. राजा आहाब ने कहा कि निश्चय ये ऐसा कर सकते हैं, मेरे पास 400 नबियां हैं जो परमेश्वर की इच्छा के बारे में हमें बताएंगे। But those 400 are not true prophets of God, but false prophets. मगर वो 400 नबियां सच्चे नहीं, झूठे भविष्यवक्ता थे। So they prophesied all good things that the king will have victory in the war. उन्होंने अच्छे से भविष्यवाणी करी कि राजा को लड़ाई में विजय मिलने वाला है। When King Jehoshaphat heard that, he felt in his heart, this is not the right word from God. जैसे ही राजा यहोशापात ने सुना, उनको लगा कि ये तो परमेश्वर से आया हुआ सही भविष्यवाणी नहीं है। So he asked King Ahab, is there any true prophet in the land? उन्होंने राजा आहब से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई सच्चा नबी है? So King Ahab said, yes, there is one prophet called Micaiah, and he was brought to the king's palace. राजा आहाब ने कहा कि हाँ, एक नबी है, उसका नाम मिकाया है और उसे वहाँ दरबार पर लाया गया। So Micaiah was asked, what is the will of God concerning this war situation? मिकाया नबी से पूछा गया कि इस युद्ध की स्थिति में परमेश्वर की क्या इच्छा है। And 1 Kings chapter 22 verses 19 to 23 tells us of a vision that Micaiah had seen. पहला राजा 22 अध्याय का 19 से लेकर 23 आयत तक कहता है, मिकाया नबी को एक दर्शन मिला। And when he was praying, his spirit was caught up to heaven and he stood in the council of God. जैसे वो प्रार्थना करने लगा, उनकी आत्मा उनसे निकलकर परमेश्वर के सभा में पहुंच गया। There he saw the Lord God discussing about this situation and knowing what is heaven's perspective about the situation. उसने वहाँ पर यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति को देखा और इस युद्ध के बारे में स्वर्ग क्या कहता है उसे जानने को पाया। This is the blessings you will get when you calm yourselves before the throne of God. यही वो आशीष है जो आपको भी मिलेगी जब आप परमेश्वर के सिंहासन पर आएंगे। When you come boldly like a king before God's throne, you will be shown from heaven's perspective. जब आप निर्भीक होकर एक राजा के समान परमेश्वर के सिंहासन के सामने आएंगे, आपको स्वर्ग का दृष्टिकोण या विचार पता चल पाएगा। Let me give you one very real life situation. मैं आपको एक वास्तविक स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। Presently, there is war going on in Israel between Israel and the Hamas terrorists in Gaza. इस समय इज़राइल और हमास आतंकवादियों के बीच गाजा में युद्ध हो रहा है। So on the 14th of May, as I was praying
for the situation. 14 मई के दिन जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था इस स्थिति पर, Suddenly I remembered there's something very significant about 14th May. अचानक मुझे याद आया कि 14 मई तो एक विशेष दिन है। So when I Googled, I realized that 14th May is the day in 1948 when Israel was declared a sovereign state. जब मैंने गूगल की तो पता चला कि 14 मई उस दिन था जब 1948 साल में इजराइल एक सार्वभौमिक देश के रूप में पहचान में आया। So I bent my knees and began to pray for the safety and protection of Israel. इसीलिए घुटने में आते हुए मैंने इजराइल की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। As I was praying, my spiritual eyes were opened. जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था मेरी आत्मिक आंखें खुल गई And I saw the temple in heaven. और मैंने स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर को देखा। It was filled with the glory, Shekinah of God. यह परमेश्वर के शेकाइना महिमा से भरा हुआ था। It was very glorious to behold. यह अत्यंत महिमामय दिखाई दे रहा था। And I saw many saints who were related to the nation of Israel gather in the temple to pray for the nation of Israel. मैंने कई सारे संतों को भी देखा जो इजराइल से संबंधित थे, वे मंदिर में जमा होकर इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे थे। There was also great concern about the war that was going on in Israel presently. वे वर्तमान युद्ध जो हो रहा है इजराइल में उसके लिए भी बहुत ही फिक्रमंद दिखाई दे रहे थे। So we can know things from heaven's perspective when we walk in the kingly and priestly anointing of the order of the Melchizedek. इसी तरह अगर हम मल्कीसेदेक की रीति पर राजस्व और याजकीय अभिषेक में चलेंगे तो स्वर्ग के विचार और दृष्टिकोण को हम भी जान पाएंगे। So now that you understood what we studied last week, let's continue from there. अब आप समझ गए होंगे कि हमने पिछले सप्ताह क्या सीखा। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। So how can we come boldly before the throne of God? हम कैसे प्रभु के सिंहासन के सामने निर्भीक होकर आ सकते हैं? Or how can we enter into the holy place and the most holy place? या हम कैसे पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं? Is there any key to enter the holy place as a priest of the order of the Melchizedek? क्या कोई चाबी है जिसके द्वारा मल्कीसेदेक की रीति पर हम याजक के समान पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं? They are not one key but two keys. यहाँ पर सिर्फ एक ही ताली नहीं मगर दो ताली अथवा चाबी है। And they signify faith and boldness. ये दो बातें हैं, विश्वास और निर्भीकता। You need faith to believe that God will hear your prayer. हमें विश्वास की आवश्यकता है यह करने के लिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। This is the biggest problem Christians have today. यही सबसे बड़ी समस्या है इन दिनों मसीहियों में। Most Christians believe that God will not hear their prayer. कई सारे मसीह का ये विश्वास होता है कि परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को सुनते नहीं है। Am I right? क्या मैं सही कह रहा हूँ? We have so many doubts whether if God will hear our prayer. हम इतना ज्यादा शक करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कैसे सुनेंगे। First, we need to discard such negative thoughts. सबसे पहले हमें इस प्रकार के नकारात्मक विचार को हटाना है। The Bible simply says, बाइबल साधारण रूप से कहता है God is a rewarder of all those who seek Him. परमेश्वर उन हरेक को इनाम देते हैं जो उन्हें ढूंढते हैं। So you believe that word of God. इसलिए हमें परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास करना चाहिए। Then come by faith. फिर विश्वास के साथ आएं। The blood of the Lord Jesus Christ has made you acceptable by God. यीशु मसीह का लहू आपको यहोवा परमेश्वर के द्वारा स्वीकार करने योग्य बना दिया है। And having faith is putting your entire confidence and trust in the living God. विश्वास होने का ये मतलब है कि अपना पूर्ण भरोसा जीवित परमेश्वर में लगाए रखना। The confidence that God will hear you. वो विश्वास कि प्रभु आपको चंगा करेंगे। And trust in the goodness of God to hear your prayer. परमेश्वर की उस भलाई पर विश्वास करने के लिए जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। So this is the first key that we need. यही वो पहला ताली या चाबी है जिसकी हमें आवश्यकता है। An example comes to my mind from the book of Matthew chapter 17. एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है मत्ती रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय से। A father brought his son
who is afflicted with epilepsy to the disciples to be healed. एक पिता अपने बेटे को लेकर चेलों के पास आता है मिर्गी के दौरे से चंगाई के लिए, But no matter what they tried, what they prayed, the boy could not be delivered. चेलों ने बहुत प्रार्थना करी, कोशिश करी, मगर वो छुटकारा को न पा सका। And when the Lord Jesus Christ came down after praying, the father approached the Lord for help. जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना समाप्त कर वहां पर लौट आए, उस पिता ने उनकी ओर रुख किया। And the Lord Jesus then rebuked the unclean spirit from the boy and delivered him. फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस अशुद्ध आत्मा को डांट कर निकाल दिया और उस लड़के को उस दुष्ट आत्मा से मुक्त करा दिया। The disciples then came to the Lord Jesus and asked him why they couldn't deliver that boy. प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके पास आकर पूछने लगे कि क्यों वे ऐसा करने में असफल हुए। The Lord Jesus simply said, it is because of your unbelief. प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये तुम्हारे अविश्वास के कारण है। Unbelief is lack of faith. अविश्वास का मतलब है विश्वास की कमी। So when you are walking in unbelief, your prayers will not be heard and no miracles can manifest. जब आप अविश्वास करते हैं तो आपका प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है और कोई भी अद्भुत कार्य नहीं होता है। So faith is very simple. विश्वास बहुत ही साधारण है। Trust God with all your heart like a little child. एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर को पूरे मन से विश्वास करना। Don't harbor any negativity in your heart. अपने दिल में कोई नकारात्मक विचार को ना रखें। Now the second key is to come boldly before the throne of God. दूसरी चाबी है परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्भीकता के साथ में आना। After you use the first key, the second key comes automatically. अगर आप पहली ताली या चाबी का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। You need not be afraid to come before the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आने में आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। We can come boldly before the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप बड़े निर्भीकता और साहस के साथ आ सकते हैं। How is it possible? यह कैसे संभव है? Hebrews chapter 4 verse 16 and chapter 10 verses 19 to 22 tells us it's because of the blood of the Lord Jesus Christ. इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय के 16वें वचन और 10 अध्याय के 19 से 22 ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा यह संभव है। The death of the Lord Jesus Christ on the cross has opened a way for us to come boldly before the throne of God. यीशु मसीह के सलीब की मृत्यु ने हमारे लिए उस दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया है अनुग्रह के सिंहासन के सामने निर्भीकता के साथ आने के लिए। That is what the blood of Jesus Christ has done for us. यीशु मसीह का लहू हमारे लिए यही कार्य को करता है। That is why the Lord Jesus told us when we pray, we should not doubt but pray with faith. इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये कहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें शक नहीं करनी चाहिए। Mark chapter 11 verse 24 says, whatever you ask in faith, believing, you shall receive. मरकुस के पुस्तक 11 अध्याय का 24वां वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि यह तुम्हें मिल गया है और यह तुम्हें दिया जाएगा। So these are the two keys which you can use as a priest under the Melchizedek anointing to come boldly before the throne of grace. यही वो दो चाबी है जिसके द्वारा आप मल्कीसदेक की रीति पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्भीकता के साथ आ सकते हैं। And when you pray with faith, your prayer will certainly be answered. जब आप विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। Amen. आमीन। We'll continue this study next week. अगले सप्ताह हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049।